देखो शिखरे आपणଙ୍କୁ स्वागत। आज ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଦେଶ ବିଦେଶର 30ଟି ମୁଖ୍ୟ ଖबर। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 1, ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲରେ କଏଦୀଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ତାଲିମ। ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲରେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଥିବା କଏଦୀଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଚୌଦ୍ୱାର ମଣ୍ଡଳ କାରାଗାରରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶା ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସୁବ୍ରତ ବାଗଚୀ ଯୋଗଦେଇ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜେଲ୍ ପରିସରରେ ବିଭିନ୍ନ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ତାଲିମ ଦିଆଯିବ। ଏହାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ କାମ। ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ କଏଦୀମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ସହ ଜେଲ୍ରୁ ବାହାରିଲା ପରେ ଅପରାଧ କମିବାରେ ଏହା ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୁବ୍ରତ ବାଗଚୀ। ନମ୍ବର 2, ମିଡିଆ ଟ୍ରାଏଲ୍ ବିପଜ୍ଜନକ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲାଗିବା ଦରକାର, କହିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିଚାରପତି। ବିଜେପିର ପୂର୍ବତନ ଜାତୀୟ ମୁଖପାତ୍ର ନୂପୁର ଶର୍ମାଙ୍କ ବୟାନକୁ ନେଇ କଡ଼ା ଭର୍ତ୍ସନା କରିଥିବା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ଜେ.ବି. ପର୍ଦିୱାଲା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ଅପବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଜଷ୍ଟିସ୍ ପର୍ଦିୱାଲା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଉପରେ କଡ଼ା ଅଙ୍କୁଶ ଲାଗିବା ଦରକାର। ସେହିପରି ମିଡିଆ ଟ୍ରାଏଲ୍ ରୁଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ନୁହେଁ। ରବିବାର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ପର୍ଦିୱାଲା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ଅର୍ଦ୍ଧ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧ ତଥ୍ୟ ପ୍ରସାରଣ ହେଉଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ରୁଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲ ବିଚାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ପ୍ରମାଣ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ତଥ୍ୟ ପାଇଁ କୋର୍ଟରେ ଚାଲିଥିବା ଟ୍ରାଏଲ୍ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ଡିଜିଟାଲ ମିଡିଆରେ ହେଉଥିବା ଟ୍ରାଏଲ୍ ବିଚାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏକ ଅଜଣା ହସ୍ତକ୍ଷେପ ସଦୃଶ ବୋଲି ପର୍ଦିୱାଲା କହିଛନ୍ତି। ଅର୍ଦ୍ଧ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧ ତଥ୍ୟକୁ ନେଇ ହେଉଥିବା ତର୍କ ବିତର୍କ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ବିପଦ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 3, ଏନ୍ଭିଏସ୍ରେ ଚାକିରି ପୂରଣ ହେବ 1616ଟି ପଦବୀ। ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମିତି ଏନ୍ଭିଏସ୍ରେ ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିବା ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଏଥିପାଇଁ ଏନ୍ଭିଏସ୍ ଟିଜିଟି, ପିଜିଟି, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଜାରି କରିଛି। ଆଗ୍ରହୀ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଏନ୍ଭିଏସ୍ର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ navodaya.gov.in କୁ ଯାଇ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏହି ପୋଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜୁଲାଇ 2ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମୋଟ ପଦବୀ ସଂଖ୍ୟା 1616। ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ 22 ଜୁଲାଇ 2022। ନମ୍ବର 4, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 25ଟି ୟୁପିଏସ୍ସି ୟୁସିଏସ୍ସିରେ କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମାସ୍କ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବା ପରେ ଏବେ କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣ ରୋକିବାକୁ ଟେଷ୍ଟିଂ ଓ ଟ୍ରାକିଂକୁ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି। କାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 25ଟି ୟୁପିଏସ୍ସି ୟୁସିଏସ୍ସିରେ କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସକାଳ 9ଟାରୁ 11:30 ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରୁ 7ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ। କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସକାଳ 8ରୁ ଅପରାହ୍ନ 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟେଷ୍ଟିଂ କରାଯିବ। ଲୋକେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଏହାର ସୁବିଧା ନେଇପାରିବେ। କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ବିଏମ୍ସି। ଯେଉଁମାନଙ୍କଠାରେ କୋଭିଡ୍ ଲକ୍ଷଣ ରହିଛି ସେମାନେ ଟେଷ୍ଟ କରାଇ ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପାଣିପାଗ ସୂଚନା, ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ। 5 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ, 17 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି। ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟର 5ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ 17ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି କହିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଜୁଲାଇ 4 ତାରିଖ ସୋମବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର ଓ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏହି 5ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ସେହିପରି ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବୌଦ୍ଧ, କଳାହାଣ୍ଡି, ନୂଆପଡ଼ା, କନ୍ଧମାଳ, ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ସୋନପୁର, ନବରଙ୍ଗପୁର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କଟକ, ଦେବଗଡ଼, ଢେଙ୍କାନାଳ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବାଲେଶ୍ୱର, ଅନୁଗୁଳ ପ୍ରଭୃତି 17ଟି ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ସହ ବଜ୍ରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନମ୍ବର 6, ଆସନ୍ତା 30ରୁ 40 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜେପିର ଯୁଗ ରହିବ, କହିଲେ ଅମିତ ଶାହ। ଆସନ୍ତା 30ରୁ 40 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜେପିର ଯୁଗ ଜାରି ରହିବ, ଅର୍ଥାତ୍ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଜେପିର କ୍ଷମତା କାଏମ ରହିବ। ଦଳର ଭବିଷ୍ୟତ ନେଇ ଏମିତି କିଛି ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ। ଖାଲି ଆକଳନ କରିନାହାନ୍ତି, ଭାରତ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ହେବ ବୋଲି ଶାହ କହିଛନ୍ତି। ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ବିଜେପିର ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେଇ ଏହା କହିଛନ୍ତି ଶାହ। ଏହି ଅବସରରେ ଶାହ ଏକ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ବଂଶବାଦ ରାଜନୀତି, ଜାତିବାଦ ରାଜନୀତି ଏବଂ ତୁଷ୍ଟିକରଣ ରାଜନୀତି ସବୁ ଏକ ବଡ଼ ପାପ ବୋଲି ଶାହ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଦେଶ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାରେ ସଢ଼ି ଆସୁଥିଲା। ସେହିପରି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ବିଜେପି ପାରିବାରିକ ଶାସନର ଅନ୍ତ ଘଟାଇବ ବୋଲି ଶାହ କହିଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ପାରିବାରିକ ପାର୍ଟି ହୋଇଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଅମିତ ଶାହ। ନମ୍ବର 7, ଭାରତ ଆସିବନି ଗ୍ରେଟ୍ ୱାଲ୍ ମୋଟର୍ସ।
भारत में 100 कोटी डॉलर निवेश करने को चाइना ऑटोमोबाइल कंपनी ग्रेट वॉल मोटर्स योजना करिथिला। एपरिक दीर्घ 2 वर्षर ऊर्ध्व समय पर्यंत अपेक्षा करिबा परे मध्य उक्त कंपनीर योजना को भारत सरकार मंजूर करनथिले। फल कंपनी बाध्य होई भारत आसिबा योजना को बंद कर देइछि। निकटरे अमेरिकार इलेक्ट्रिक कार निर्माता टेस्ला मध्य भारत में गाड़ी बिक्री योजना को रद्द करिथिला। केवल ग्रेट वॉल मोटर्स नुहे अनेक विदेशी ऑटोशिल्प भारत आसिबा योजना करिथिले मध्य विभिन्न कारण जोगु सेमाने आसीपारिले नाही। नंबर 8 औरंगाबाद परे बदली पारे हैदराबाद ना। औरंगाबाद और उस्मानाबाद पर एवं हैदराबाद ना बदली पारे बोली चर्चा होउछि। सूचना मुताबक हैदराबाद रे भारतीय जनता पार्टी 2 दिनिया जातीय कार्यकारिणी बैठक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करथिले। बैठकर शेष दिन में प्रधानमंत्री मोदी हैदराबाद को भाग्यनगर बोली कही संबोधित करथिले। एहा परे वर्तमान हैदराबाद नाम मध्य परिवर्तन हेबो बोली चर्चा जोर धरिछि। हैदराबाद ना बदला जाई भाग्यनगर करा जाई पारे बोली आलोचना आरंभ हो जाइछि। प्रधानमंत्री निज संबोधन में कहिथिले जे हैदराबाद हेउछि भाग्यनगर जहाँ आम समस्त गुरुत्वपूर्ण। नंबर 9 न्यायपालिका केवल मात्र संविधान निकट में उत्तरदायी कहले प्रधान विचारपति। प्रधान विचारपति जस्टिस एन.वी. रमन्ना शनिवार दिन राजनीतिक दलगुड़ी को कटाक्ष करिसेंति। सान फ्रांसिस्को रे एक इवेंट को संबोधित करने समय से कहिसेंति जे भारत में शासक दल चाहूँगी जे कोर्ट सेमानक निष्पत्ति को समर्थन करंतु। अन्य पक्षरे विरोधी दल आशा करुछंती जे न्यायपालिका सेमानकर राजनीतिक दृष्टिकोण एवं उद्देश्य को आगू बढ़ू। यह केवल संविधान एवं गणतांत्रिक अनुष्ठान गुड़िकर कार्य विषय लोकंक मनरे थिबा भूल धारणा हेतु होइथाए। साधारण लोकंक मध्यरे एही अज्ञात को प्रोत्साहित करिबा द्वारा न्यायपालिका प्रति स्वाधीन संस्था को समालोचना करने को चाहूथिबा लोकमानंको शक्ति मिली थाए। किंतु मु यह स्पष्ट करने को चाहूँगी जे न्यायपालिका केवल मात्र संविधान निकट में उत्तरदायी। प्रधान विचारपति कहिसेंति जे आमको विभाजन करुथुबा प्रसंग अपेक्षा एकजुट करुथुबा प्रसंग पर ध्यान देवा आवश्यक। नंबर 10 पंजाब सरकार सोमवार हेब मंत्रिमंडल विस्तार। पंजाबर आम आदमी पार्टी सरकार सोमवार तार मंत्रिमंडल विस्तार करिबे बोली अनुमान करा जाउछि। एही मंत्रिमंडल रे जणे महिला समेत अतिकम 5 जण विधायकों को मंत्रिपद दिया जाई पारे बोली कह जाउछि। एही 5 विधायकों को मुख्यमंत्री भगवंत मानक मंत्रालय रे शामिल कर जाई पारे। या परे मोट मंत्री संख्या 15 होई जिवो। मिलिथिबा सूचना अनुसार पंजाबर राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को पत्र लिखि सोमवार संध्या रे शपथ ग्रहण समारोह पई समय मगा जाइछि। तेबे मंत्रिमंडल संप्रसारण पूर्व दिल्ली रे पंजाब मुख्यमंत्री भगवंत मान और दिल्ली मुख्यमंत्री तथा आप्र संयोजक अरविंद केजरीवाल मध्य बैठक होइथिला। 3 घंटा धरी चलीथिबा एही बैठक में जो विधायकों को मंत्रिमंडल में सामिल कराजिबो सेमानक नाम को नहीं मानस मंथन होइथिला। नंबर 11 क्रीड़ा क्षेत्रर भित्तिभूमि विकास पई 911 कोटी सर्वकालीन रेकर्ड। आसंता वर्ष ओडिशा रे विश्वकप हॉकी मैच निमंते प्रस्तुति जोरसोर चलीथिबा बेले ओडिशा बजेट इतिहास रे प्रथम थर पई क्रीड़ा क्षेत्र निमंते 911 कोटी टंका व्यवहार होइछि, जहाँकि सर्वकालीन रेकर्ड बोली कह जाउछि। बजेट व्यवहार अनुसार 2022-23 आर्थिक वर्ष बजेट रे मोट 2 लाख कोटी टंकार व्यय अटकड़ थिबा बेले एथिरे क्रीड़ा क्षेत्र पई मोट 911 कोटी टंका व्यवहार होइछि। नंबर 12 महाराष्ट्र विधानसभा बाचस्पति भावे बाजी मारिले बीजेपी प्रार्थी। प्रथम अग्नि परीक्षा रे पास हेले महाराष्ट्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। तांको मिलिला आउ एक सफलता। प्रथमे उद्धव सरकार को शासन क्षमतारू विदा करिबा परे एबे बाचस्पति निर्वाचन रे शिंदे देवेंद्रଙ୍କ रणनीति काम करिछि। महाराष्ट्र विधानसभा पई होइथिबा बाचस्पति निर्वाचन रे बाजी मारिछंती बीजेपी समर्थित प्रार्थी राहुल नार्वेकर। बाचस्पति निर्वाचन रे विजय पई 144 खंड भोटर आवश्यकता थिबा बेले राहुल 164 खंड भोट पाई महाराष्ट्र नुआ बाचस्पति होइछंती। बाचस्पति पद निमंते सेना विधायक तथा उद्धव ठाकरे अनुगामी राजन सालुई शिवसेना एनसीपी कांग्रेस प्रार्थी होइथिले। तेबे सालुई 107 खंड भोट पाइछंती। नंबर 13 हाईकोर्ट रे 1,90,225 मामला एवं विचाराधीन। ओडिशा उच्च न्यायालय रे 33 जन विचारपति कार्य करिबा स्थान रे वर्तमान 22 जन विचारपति कार्यरत अछंती। सेहीपरि ओडिशा हाईकोर्ट रे 1,90,225 टी मामला विचाराधीन अछि। विधायक अनंत दास एक प्रश्नर लिखित उत्तर दे आईन मंत्री जगन्नाथ सारक यह सूचना देइछंती। एहा बाद मंत्री श्री सारक सूचना देइछंती जे 2019 एवं 2020 रे 85,834 टी मामला लोक अदालत द्वारा फैसला होइछि। कटक जिले में सर्वाधिक 23,690 टी एवं सोनपुर में सबुठु कम 176 टी मामला लोक अदालत रे फैसला होइछि। सेहीपरि ओडिशारू 3 जन विचारपति त्रिपुरा, उत्तराखंड, कलिकता उच्च न्यायालय रे कार्यरत अछंती। नंबर 14 2 जन लश्कर आतंकवादी को बांधी पुलिस हाथ में देले ग्रामवासी। पाखरे विपद अस्त्रशस्त्र रखिथिबा 2 जन लश्कर तैयबा आतंकवादी को ग्रामवासी माने काबू करी काली जम्मू कश्मीर रियासी जिल्लार पुलिस को हस्तांतर करिथिबा कथा पुलिस कहिछि। निकट अतीत रियासी जिले में घटिथिबा आईईडी विस्फोरण घटनार मास्टरमाइंड लश्कर कमांडर तालिब हुसैन को
तुक्सान ग्रामवासी माने काबू करी निरापत्ता बलों हाथ में धरी देइथिले। लश्कर ए तैयबार ई आतंकवादी कमांडरों नाँ में जम्मू कश्मीर पुलिस पुरस्कार घोषणा करिथिला। सही गाँव फैजल अहमद दर नाम आउ जड़े आतंकवादी गिरफ कर। नंबर 15 जम्मू कश्मीर में धरा पड़ी आतंकवादी थिले भाजपा आईटी सेल मुख्य। जम्मू कश्मीर रियासी जिले में धरा पड़ी जड़े आतंकवादी भाजपार आईटी सेल मुख्य थिले बोली जना पड़ी। अलीफ हुसैन शाह को ग्रामवासी माने रविवार काबू करथिले। ऑनलाइन सदस्यता प्रदान बेले संपृक्त व्यक्ति पृष्ठभूमि जांच कराଯାଉନଥିବାରୁ एपरि होइतिबा भाजपा पक्षरु कहଯାଇଛି। अलीफ हुसैन शाह हेउचंती पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबार जड़े सक्रिय सदस्य। एही वांटेड आतंकवादी जनक भाजपार मध्य सक्रिय सदस्य। भाजपा तांको जम्मू अंचलर दलीय संख्यालघु मोर्चा सोशल मीडिया इंचार्ज करिथिला। तलीफ हुसैन और तांकर जड़े सहयोगी को रियासी अंचल में ग्रामवासी माने धरिछंती। उभयंकठारु 2टी AK राइफल अनेक ग्रेनेड और अन्य अस्त्रशस्त्र जबत कर जाइछि। स्थानीय लोके दुहिंकु काबू करिबा परे पुलिस जिम्मा देइछंती। नंबर 16 गोध्रा हिंसाकांड अभियुक्तों को आजीवन कारादंड। बहुचर्चित गुजरात गोध्रा हिंसाकांडर अभियुक्तों को मिला सजा। गोध्रार निम्न अदालत अभियुक्त आजीवन कारादंड दे शुणाइछंती। ए अभियुक्त 19 वर्ष धरी फेरार थिबा बेले गत वर्ष तांको गिरफ कर जाइथिला। गुजरात गोध्रा कांडर अन्यतम अभियुक्त रफिक हुसैन गत वर्ष पुलिस तांको गिरफ करिथिला। हेले काली तांको गोध्रा कोर्ट आजीवन कारादंड रे दंडित करिछंती। रफिकों को हत्या हिंसा उस्केबा अभियोग रे दोषी साब्यस्त कर जाइछि। नंबर 17 बिजू बाबू को डाकोटा कोलकाता भुवनेश्वर आनिबाको टेंडर आह्वान। ओडिशा आसिब बिजुंको डाकोटा विमान। एथिपाई राज्य वाणिज्य परिवहन विभाग पक्षरु विधिबद्ध उद्यम आरंभ होईछि। किंतु डाकोटा कटक रे बिजू बाबूंको जन्मस्थान कटकर आनंद भवन सामने रहिबो ना भुवनेश्वर विमान बंदर रे रहिबो ताहाको नै पुणी द्वंद्व सृष्टि होईछि। कोलकाता स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्जातिक विमान बंदर रे पड़ी रहितिबा डाकोटा को भुवनेश्वर आनिबा पई एबे राज्य परिवहन विभाग पक्षरु टेंडर आह्वान एभଳି द्वंद्व को हवा देइछि। जुलाई 30 टेंडर आवेदनर शेष तारीख रहितिबा बेले टेंडर फैसला पर डाकोटा ओडिशा आसिबा प्रक्रिया आरंभ हेबो। किंतु टेंडर विमान को कटक अणाजिबा प्रसंग नथिबारु वास्तव में यहाकु केउठारे रखाजिबो ताहाको नै विवादीय स्थिति उपजिछि। नंबर 18 पाहाचरु खसी पड़िले लालू यादव। आरजेडी सभापति लालू प्रसाद यादव रविवार एक दुर्घटनार सम्मुखीन होइछंती। पाहाच चढ़िबा बेले हठात तांको गोड़ खसी जिबारु से भारसाम्य हरई तळे पड़ी जाइछंती। तांको डाहाण कांध फ्रैक्चर होई जाइछि। तांको डाक्तर 2 मास पई विश्राम नेबाकू कहिछंती। सूचनायोग्य पाटनारे थिबा राबिड़ी देवी बासभवन रे पाहाच चढ़िबा बेले लालू खसी पड़िथिले। तांको एक घरे डाक्तरखाना रे भर्ती करा जाइथिला। MRI स्कान परे तांको डाहाण कांधर हाड़ भांगी जिबा सह अंटारे आघात लागिथिबा जणा पड़िथिला। प्लास्टर हेबा परे लालू प्रसाद यादवଙ୍କୁ घरକୁ अणाଯାଇଛି। नंबर 19 राज्य में 300 टपिला दैनिक संक्रमण। काली कोविड संक्रमण लंबडिया मारिछि। गतकाली 231 जन संक्रमित चिन्हट होइथिबा बेले राज्य में गत 24 घंटा मध्य 346 जन पॉजिटिव चिन्हट होइछंती। एमानक मध्यरु 202 जन संगरोध केन्द्ररु चिन्हट होइथिबा बेले 144 जन पॉजिटिव स्थानीय संक्रमणरु चिन्हट होइछंती। तेबे 24 घंटे देश में 16,103 जन कोविड-19 आक्रांत चिन्हट होइछंती एवं 31 जनकर मृत्यु होइछि। नंबर 20 बीजेपी सरकार नीति विदेश में गांधी एवं देश में गड़से कहिले सीताराम येचुरी। सीपीआईएम साधारण संपादक सीताराम येचुरी भारत में धार्मिक स्वाधीनता पर अमेरिकीय पैनल रिपोर्ट को खारज करने सह केंद्र सरकार को निंदा करिसंती एवं कहिसंती जे बीजेपी सरकार नीति हेउछि विदेश में गांधी एवं देश में गड़से। येचुरी अभियोग करी कहिसंती बीजेपी सरकार नीति विदेश में गांधी एवं देश में गड़से। एही सरकार गोटिए पटे आम देश में गणतंत्र अछि बोली कहूथिबा बेले देश भितर गणतांत्रिक अधिकार को खंडन करुछंती। सीपीआईएम साधारण सचिव आहुरी कहिसंती जे देश उपर आधारित समस्त विदेशी रिपोर्ट को केंद्र सरकार प्रत्याख्यान करिसंती। अंतर्जातीय धार्मिक स्वाधीनता रिपोर्ट को अग्राह्य करी येचुरी कहिसंती जे एही सरकार देश भितर संविधान प्रदत्त मानविक अधिकार और गणतांत्रिक अधिकार को क्षुण्ण करुछि। नंबर 21 15 सुधा LIC रो आईईबी घोषणा। चलित वर्ष जुलाई 15 सुधा भारतीय जीवन बीमा निगम LIC तार इंडियन एम्बेडेड वैल्यू अर्थात आईईबी संपर्क में घोषणा करिपारे बोली सूचना मिली। एपरिकी 2022 मार्च 31 रु निगम उक्त प्रक्रिया आरंभ करिथिला। यह जुलाई 15 सुधा शेष होइजिबो बोली आकलन करा जाउछि। अपरपक्षरे निगम रो उक्त प्रक्रिया शेष हेबा पई आउ किछि समय लागिबो बोली LIC स्टॉक बाजार को फाइलिंग समय अवगत करैछि। सही बड़ी उक्त प्रक्रिया शेष हेबा सह किछि आनुषंगिक मंजूरी मिलिबो परे एहाकु सार्वजनीन करा जिवो। सूचनायोग्य अंशीदारंक पई धार्य निगमर मोट मूल्य को एम्बेडेड वैल्यू बोली विचार करा जाए। नंबर 22 ताजमहल रे नाही देवतांक मूर्ति कहिला ESI।
ताजमहल रे हिंदू देवदेवी मूर्ति नहीं बद चली बेले काली आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एएसआई एक आरटीआई उत्तर में कही जे मंदिर स्थल में ताजमहल निर्माण कराई किंबा बंद थिबा कोठरी रे कौनसी देवदेवी मूर्ति नहीं। यह पूर्व ताजमहल तड़ महल ताला पड़ी 22टी कोठरी को नहीं प्रश्न उठीथिला। नंबर 23 लिंगराज पैसेंजर हॉल्ट को पूर्ण स्टेशन रो मान्यता दाबी। सेवा प्रतिनिधि मुख्य संगठक तथा अन्य क्लब एवं कोर कमिटी मुख्य नीलमणि मिश्र आह्वान क्रमे रविवार लिंगराज पैसेंजर हॉल्ट निकट में सप्तदश थर पर शांतिपूर्ण धारणा दि जाइछि। लिंगराज पैसेंजर हॉल्ट को पूर्ण स्टेशन रो मान्यता देवा तथा तिरुपति व धौड़ी नामकरण प्रति लिंगराज नाम ट्रेन चालू करने आदि धारणार मुख्य प्रसंग रही। नंबर 24 भारत को विश्व बैंक सहायता। विश्व बैंक भारतर अर्थनीति रे सुधार पई ऋण आकार रे 1.75 बिलियन डॉलर सहायता घोषणा करिछि। एही अर्थ प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना एवं बेसरकारी क्षेत्र में निवेश पई खर्च कराजिबो बोली कहुଯାଇଛି। देशर अर्थनीति वृद्धि करिबारे यह बेस सहायक हेबो। सेहिबडी विश्व बैंकर बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर $1000 सहायता भित्तिक ऋण को मध्य मंजूरी प्रदान करिसेंती। यह भारतर स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में बेस सहायक हेबो बोली आशा करा जाउछि। नंबर 25 यूक्रेन उपरे रूसियार एयर स्ट्राइक। रूसिया यूक्रेन युद्ध थमिबार ना नेउनी। फेब्रुआरी 24 रु यूक्रेन उपरे लगातार आक्रमण जारी रखिछि रूसिया। यूक्रेन रो यासिनोभा तायारे रूसिया पुणी एक एयर स्ट्राइक करिछि। रूसिया रॉकेट माड़े ध्वंस होइछि अनेक घर और कोठा। डोनेस्क पीपुल्स रिपब्लिक और लुगानस्क पीपुल्स रिपब्लिक घोषणा पर यही दुई अंचल में रूसिया निजर अधिकार सब्यस्त करिछि। सेपटे यूक्रेन रो ओडिशा रे होइथिबा आक्रमण रे मध्य 19 जन प्राण हरैथिले। स्नेक आइलैंड रे मुतयन थिबा रूसिया सैन्य प्रत्याहार पर सही पथ देई मध्य प्राच्य और आफ्रिका को खाद्य सामग्री परिवहन करा जाउछि। नंबर 26 पंचायतर फरमान। संख्यालघु फेरीवालाठू जिनिस किणिले 5100 फाइन। संख्यालघु फेरीवालांठारू जिनिस किणिबाकू बारण करा जाइछि। मुस्लिम फेरीवालांठारू जिनिस न किणिबाकू गुजरात बनासकांठार वाघसान ग्राम पंचायत पक्षरु फरमान जारी होइछि। ग्राम पंचायत पक्षरु एक लेटर पैड रे एभडी निर्देश जारी करा जाइछि। जिए ए निर्देश भांगिबो ताकू 5100 टंका फाइन देबाकू पड़िबो बोली एथिरे कह जाइछि। जहार फोटो बे सोशल मीडिया रे भाइराल हेबारे लागिछि। सेपटे बनासकांठा प्रशासन किंतु एभडी कोनोसी निर्देश दिया जाई नथिबा कहिसंती। प्रशासन तरफरु जारी बयान रे कह जाइछि जे वाघसान ग्राम पंचायतर लेटर पैड रे जो निर्देश दिया जाइछि ता वैध नुहे। यह निर्देश को कई अनुसरण करने अनुचित। एभली गुजब सृष्टिकारी विरोध में कड़ा कार्यानुष्ठान ग्रहण करा। नंबर 27 मणिपुर भूस्खलन घटना मृत्यु संख्या 34 को वृद्धि। मणिपुर नोने जिले में भूस्खलन घटना रे मृत्यु संख्या 34 को वृद्धि पाई। एक रेलवे निर्माण कार्यस्थल में यह भूस्खलन घटीथिला। तेबे मृतकों मध्य सेनार केतेक जवान और साधारण लोक अछंती। प्रतिकूल पाग सत्वे सर्च ऑपरेशन जारी रही। एजाए पाखापाखि 28 जन लोक निखोज अछंती। गत जून 29 तारिख में टुपुलियाड रेलवे निर्माण स्थल में एक बड़ धरणर भूस्खलन होइथिला। तेबे निखोज 28 जनक मध्यरु 7 जन जवान थिबा बेले 21 जन साधारण नागरिक अछंती। नंबर 28 श्रीमंदिर गर्भगृह जांच आरंभ कले एएसआई वैषयिक टीम। पुरी श्रीमंदिर गर्भगृह जांच पई पहुंचिले एएसआई रो वैषयिक टीम। काली पूर्वाह्न एही टीम पहुंची एवं श्रीमंदिर ऐतिह्य कीर्तिराजीर सुरक्षा निमंते जांच आरंभ करिसंती। टीम रे आईआईटी चेन्नई रो प्रोफेसर अरुण मेनन, दिल्ली रो कंजर्वेशन सुपरिटेंडेंट इंजीनियर भीमा, एएसआई ओडिशा मुख्य अरुण मल्लिकଙ୍କ समेत अन्य अधिकारी गर्भगृह जांच करिसंती। गर्भगृहर अवस्था, नाटमंडप, भोगमंडप, विभिन्न द्वारर गुमुट, मेघनाथ पाचेरी, कड़ाहाट द्वारर रूप छाउणी काम और श्रीमंदिर परिसर पार्श्व मंदिर स्थिति मध्य अनुध्यान करुछि टीम। नंबर 29 महिला हॉकी विश्वकप भारत इंग्लैंड मैच ड्र। नेदरलैंड्सर आम्स्टेलभिन रे रविवार अनुष्ठित महिला हॉकी विश्वकप रे भारत इंग्लैंड मैच 1-1 गोल रे ड्र रही। पूल बी रो एही मुकाबिला सह भारत तार अभियान आरंभ करिछि। टोकियो ओलंपिक पराजयर मधुर प्रतिशोध नेबा पई भारत निकट में सुजोग थिले मध्य यह हाथछड़ा होइछि। इंग्लैंड पक्षरु इसाबेल पीटर एवं भारत तरफरु बंदना काटेरिया गोटिए लेखाएं गोल स्कोर करथिले। ड्र जोगु उभय टीम गोटिए लेखाएं पॉइंट पाइछंती। 5 तारिख में भारत तार परवर्ती मुकाबिला रे चीन को भेटिबो। नंबर 30 पंचम टेस्ट प्रथम पाड़ी इंग्लैंड 284 रन रे ऑल आउट। इंग्लैंड विपक्ष प्रथम तथा शेष टेस्ट रे भारत क्रमगत भाव भल प्रदर्शन जारी रखिछि। इंग्लैंड को टीम इंडिया प्रथम पाड़ी रे 284 रन रे ऑल आउट करिछि। भारत पक्षरु मोहम्मद सिराज सर्वाधिक 4टी विकेट नैछंती। सेहिपरि जसप्रीत बुमरा को 3टी, मोहम्मद सामी को 2टी और शार्दुल ठाकुर को गोटिए विकेट मिलिछि। एथिसहित भारतीय टीम प्रथम पाड़ी आधार रे 132 रन रे अग्रणी रहिथिला। भारत तार द्वितीय इनिंग्स रे 3 विकेट हरई 125 रन करिछि। चेतेश्वर पुजारा 50 रन करी नॉट आउट रहिछंती। भारत तार प्रथम पाड़ी आधार रे 257 रन लीड नहीं सारी। भिडियोटी को संपूर्ण देखिथिबारु बहुत बहुत धन्यवाद।